تمام سامعین کی خدمت میں نعیم کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس سوشل میڈیا لائیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم۔ پیش خدمت ہے اردو نیوز میگزین۔ اردو نیوز میگزین کے آغاز میں سنیے حالات حاضرہ پر مبنی جہانما۔ جہانما میں آج کے اہم موضوعات اس طرح ہیں۔ افغانستان میں سڑک کنارے بم پھٹنے اور فضائی حملوں میں 15 ہلاکتیں۔ پاکستان ذکیر الرحمان لکھوی کو ممبئی حملے کا جواب دہ بنائے امریکہ۔ ہند کو سلامتی کونسل کی 3 اہم کمیٹیوں کی سربراہی حاصل، ہندوستانی مندوب۔ بنگلہ دیش نے 1971 کی نسل کشی کے لیے پاکستان سے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ، اور ہندوستان کے ساتھ مساوات پر مبنی دوستی چاہتے ہیں نیپالی وزیر اعظم اولی۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں اتوار کو سڑک کنارے بم دھماکے اور ملک کے دیگر حصوں میں مختلف فضائی حملوں میں 15 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کے مطابق اتوار کو کابل میں پیش آنے والے ایک واقعے میں وزارت داخلہ کی نیشنل پبلک پروٹیکشن فورس کے ترجمان ضیاءالدین کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ہلاک ہو گئے۔ افغان صدر اشرف غنی نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو واقعے میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے۔ اس حملے کی ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے ذمہ داری قبول نہیں کی گئی، تاہم افغان صدر نے الزام لگایا ہے کہ اس کارروائی کی منصوبہ بندی طالبان نے کی۔ افغان صدر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے تشدد میں اضافہ قیام امن کی کوششوں کے منافی ہے۔ ان کے بقول طالبان کا یہ طرز عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے معصوم جانوں کے ضیاع اور املاک کو نقصان پہنچانے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ کابل سمیت افغانستان کے مختلف حصوں میں حالیہ عرصے میں سرکاری حکام، معروف صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغان اور امریکی حکام کی جانب سے افغانستان میں حالیہ تشدد کے واقعات کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا جاتا رہا ہے۔ دوسری طرف افغان سیکیورٹی فورسز نے شمال مغربی صوبے نیمروز میں طالبان کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جن میں 12 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ صوبائی کونسل کے سربراہ باز محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ خاشرود گاؤں میں ہونے والے فضائی حملے میں ایک مقامی شہری کا گھر نشانہ بنا، جس میں عورتیں اور بچے بھی موجود تھے۔ صوبہ نیمروز کے گورنر نے بھی ان فضائی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ افغان ایئر فورس نے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں 12 شدت پسند مارے گئے۔ اتوار کو کابل میں ہونے والے حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے ہیں کہ جب افغان حکام اور طالبان کے درمیان 20 برس سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ لشکر طیبہ کے آپریشنز کمانڈر ذکیر الرحمان لکھوی کو پاکستان میں دہشت گردی سے متعلق مالی معاونت کے معاملے میں سزا سنانے سے اس کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد کو دہشت گردی کے حملوں میں ملوث ہونے کے الزام میں اسے مزید ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے، جس میں 2008 ممبئی قتل عام بھی شامل ہے۔ این ڈی ٹی وی کی خصوصی رپورٹ کے مطابق ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ لکھوی کو جمعے کے روز پاکستان کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے اسلام آباد پر بڑھتے ہوئے بین الاقوامی دباؤ کے درمیان دہشت گردی سے متعلق مالی معاونت کے ایک مقدمے میں 5 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ خبر کے مطابق عدالتی فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے جنوبی اور وسطی ایشیا بیورو نے ٹویٹ کیا کہ ذکیر الرحمان لکھوی کی حالیہ سزا حوصلہ افزا ہے، تاہم اس کے جرائم دہشت گردی کی مالی اعانت سے کہیں زیادہ ہیں۔ پاکستان کو ممبئی حملوں سمیت دہشت گرد حملوں میں ملوث ہونے کے معاملے میں اسے مزید جواب دہ ہونا چاہیے۔ اسی دوران بھارت نے جمعے کو کہا کہ پاکستان ان اقدامات سے اے پی جے جی یعنی ایشیا پیسیفک جوائنٹ گروپ کے اجلاس اور فروری 2021 میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی مکمل میٹنگ سے پہلے شرائط کی تعمیل کرنا کا تاثر دینا چاہتا ہے۔ لکھوی کو دسمبر 2008 میں لشکر طیبہ اور القاعدہ سے وابستہ ہونے پر اقوام متحدہ نے عالمی دہشت گرد کے طور پر نامزد کیا تھا۔ پیرس میں قائم ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو جون 2018 میں گرے لسٹ میں شامل کر دیا تھا اور اسلام آباد سے بہت سی باتوں پر عمل درآمد کرنے کو کہا تھا۔ واضح رہے کہ 2008 کے ممبئی حملے میں 6 امریکیوں سمیت 166 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ اسے آئندہ 2 برسوں
2021 और 2022 के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर सलामती काउंसिल की 3 अहम कमेटियों की सरबराही करने को कहा गया है, जिनमें तालिबान से मुतालिक ताजिराती कमेटी, इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी और लीबिया से मुतालिक ताजिराती कमेटी शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इंकिशाफ अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल मंदूब टी.एस. त्रिमूर्ति ने ट्विटर पर अपने एक वीडियो बयान में किया है। याद रहे कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता साल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ था और इसकी मुद्दत का बाकायदा आगाज 1 जनवरी 2021 को हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल 15 अरकान पर मुश्तमिल होती है, जिसमें 5 ममालिक इस इदारे के मुस्तकिल रुकन हैं, जो अमेरिका, चीन, रूस, बरतानिया और फ्रांस है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मंदूब त्रिमूर्ति ने मजीद कहा है कि अफगानिस्तान के अमन व सलामती और तरक्की को मद्देनजर रखते हुए इनके बकौल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तालिबान से मुतालिक ताजिराती कमेटी हिंदुस्तान के लिए हमेशा से अहम तरजीह रही है। इनका कहना है कि मौजूदा हालात में इस कमेटी की सरबराही करने से मुबैना दहशतगर्दों की मौजूदगी और इनके मुबैना सरपरस्तों पर तवज्जो मरकूज रखने में मदद मिलेगी, जो इनके बकौल अफगानिस्तान में अमन अमल के लिए खतरा है। इनका कहना था कि भारत ये समझता है कि तशद्दुद और अमन अमल एक साथ नहीं चल सकते। हिंदुस्तान तालिबान की ताजिराती कमेटी और इंसदाद दहशतगर्दी की कमेटी की सरबराही एक ऐसे वक्त करेगा जब अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात जारी हैं। दूसरी तरफ गुज़िश्ता साल फरवरी में अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के बाद तालिबान अपने बाज़ रहनुमाओं के नाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हज़फ करने का मुतालबा करते आ रहे हैं। इनके बकौल इस सूरत हाल में जब हिंद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बाज़ कमेटियों की सरबराही करेगा तो पाकिस्तान की तरफ से मुखालफत एक नए तनाज़े का बाइस बन सकती है और अफगान अमन अमल पर इसका मनफी असर हो सकता है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने सन 2011 में करारदाद 1988 के जरिए अफगान तालिबान के ग्रुप को बैनुल अक़वामी अमन के लिए खतरा करार देते हुए तालिबान से मुंसलिक अफराद और तंजीमों के असासे जब्त करने के साथ साथ तालिबान के बाज़ रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी थी और तालिबान के मुतालबे के बावजूद अभी तक सलामती काउंसिल की ताजिराती फहरिस्त से तालिबान रहनुमाओं के नाम ताहाल हज़फ नहीं किए गए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने बांग्लादेशी शहरियों की दौरे पाकिस्तान के लिए वीज़ा की तमाम पाबंदियां खत्म कर दी हैं, लेकिन ढाका ने 1971 में होने वाली नस्लकुशी के लिए पाकिस्तान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की राह हमवार हो सके। ये मुतालबा एक ऐसे साल में अहमियत का हामिल है जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के 50 साल तकरीबात मनाएगा। बांग्लादेश के वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा शहरयार आलम ने जुमेरात के रोज़ ढाका में नए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान अहमद सिद्दीकी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी मुकम्मल करने और असासों की तकसीम के मामले को हल करने के साथ माफ़ी मांगने का अमल पाकिस्तान के साथ तातुल का शिकार बाहमी मसाइल को हल करने में अहमियत का हामिल है। वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी करदा एक रिलीज़ के मुताबिक बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो साफ्टा की गुंजाइशों के तहत मज़ीद बांग्लादेशी मसनूआत तक रिसाई फराहम करे और मनफी फहरिस्त और दीगर तिजारती रुकावटों को नरम करें। दरअसल पाकिस्तान के नए मंदूब ने बांग्लादेशी हुकूमत को बताया कि पाकिस्तान ने पहले ही बांग्लादेशी शहरियों के पाकिस्तानी वीज़ों पर तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। बांग्लादेशी शहरियों के वीज़े पर से हर किस्म की पाबंदी ख़त्म करने के बाद शेख हसीना हुकूमत का माफ़ी तलब करने का मुतालबा सामने आया है। ढाका ने कहा है कि माफ़ी मांगने से दोनों ममालिक को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के शर्मा ओली ने कहा है कि नेपाल भारत के साथ मसावात पर मबनी दोस्ती चाहता है। इतवार के रोज पार्लियामेंट के ऐवान बाला के गैर मामूली इजलास से खिताब करते हुए मिस्टर ओली ने कहा कि वज़ीर ख़ारिजा प्रदीप कुमार गेवाली 14 जनवरी को सरहद से मुतालिक तनाज़े और मुतादिद दीगर उमूर पर तबादले ख्याल करने के लिए हिंदुस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐवान ज़ेरी प्रतिनिधि सभा को तहलील करना जरूरी था और इनकी सरबराही में हुकूमत इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए एक नया सियासी मैंडेट हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नेपाल में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मैदान में बड़ी पेशरफ्त की है और ये कि वो हिंदुस्तान का एक हकीकी दोस्त बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल भारत के साथ मसावात पर मबनी दोस्ती का ख्वाह है और वो इसे एक नई बुलंदी पर ले जाएगा।
जनाब ओली ने पार्टी के अंदर अपने हरीफों और नाकदीन पर इस हिमालयाई मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वजीर खारिजा प्रदीप कुमार गेवाली 14 जनवरी को मुल्क की सरहदों से मुतालिक अमूर और दीगर अमूर पर तबादले ख्याल के लिए हिंदुस्तान जाएंगे, क्योंकि वो अच्छे बाहमी ताल्लुकात चाहते हैं। इस ऐलान ने ताल्लुकात को बहाल करने में एक ऐसे दौरे के बारे में हफ्तों की कयास आराइयों को खत्म कर दिया है जो करीब 1 साल से काला पानी इलाकाई तनाज़े से मुतासर था। इतवार को ऐवान ज़ेरी की तहलील के बारे में तबादले ख्याल के लिए मुनक्किदा कौमी असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ओली ने अपने नाक़दीन पर इस्तेहक़ाक़ के दौर को वापस लाने की कोशिश करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि वो हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत मुतारिफ करवाना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ओली ने कहा कि हुक्मरान जमात के अंदरूनी मसाइल ही 20 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा को तहलील करने की असल वजह बने थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी जिम्मेदारी से ये कदम उठाया था और अब इंतखाबात जदूल के मुताबिक अप्रैल में होंगे। उन्होंने कहा कि नेपाल में एक तबका है जिसने इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने और अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की, क्योंकि वो जागीरदारी निज़ाम के वोटर हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब नेपालियों के लड़के और लड़कियां तालीम याफ्ता और ताकतवर बने। वो पुराने जागीरदाराना निज़ाम पर यकीन रखते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि माशी तौर पर पसमानदा अफराद के बच्चे हमारी पार्लियामेंट का मेंबर बने। उर्दू न्यूज़ मैगजीन के तहत अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा पर मबनी जहानुमा। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। और लीजिए अब सुनिए आज की बात। आमिरियत के साये में पनपने वाली जमहूरियत की वही शक्ल व शबाहत होती है जो हमें बरसों से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है, चाहे वो फौजी हुक्मरानों की जमहूरी कदरें रही हों या फिर जमहूरियत की पासदारी के नाम पर सियासत की कमाल संभालने वाले सियासी कायदीन के जमहूरियत वाले नारे। हकीकत यह है कि कमोबेश हर दौर उसी आमिरियत की तेजी व तुंदी का शिकार रहा जिसकी निहायत खौफनाक शक्ल इस वक्त देखने को मिल रही है, और इसकी असल वजह वो मजहबी मुनाफरत है जिसने शुरू से पाकिस्तानी मुआशरे की तामीर व तरक्की व तश्कील में निहायत अहम किरदार अदा किया है। चाहे वो मजहबी अक़लियतों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया रहा हो या फिर मसलकी ग्रोहों के साथ तासुबाना तस्वीर हमेशा अफसोसनाक और हैबतनाक ही नजर आई है। हालिया दिनों में 2 बड़े वाक़यात ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने इस पाकिस्तानी मुआशरे के तजादात को और भी करीह बनाकर रख दिया। वो इन दोनों वाक़यात में अवामी फ़िक्री इंतशार और इंतज़ामिया के ज़हनी तजादात की एक हैरत अंगेज़ तस्वीर सामने आती है। अभी कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले के टेरी गांव में वाक़िए श्री परमहंस जी महाराज की समाधि और इससे मुत्तसिल कृष्णद्वारा मंदिर को इंतजामिया के अहलकारों की मौजूदगी में हजारों लोगों ने नजर आतिश करके तबाह व बर्बाद कर दिया, और अभी इस पर पाकिस्तानी हुकूमत आलमी बिरादरी के सामने अपनी सफाई पेश करने में लगी ही हुई थी कि सूबा बलूचिस्तान के मच के एक कोयला फील्ड में काम करने वाले हजारा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले 11 कारकुनों को निहायत सफाकी से कत्ल करने की वारदात सामने आई। मुसल्लह अफराद ने कारकुनों की आंखों पर पट्टियां बांधने के बाद इनके हाथ भी बांधे और फिर निहायत बेरहमी से गोलियों से भून डाला। हलाक होने वाले कारकुनों का ताल्लुक शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले हजारा कबीले से है, और ये कबीला है जिसे हालिया बरसों में मुस्तकिल मसलकी सफाकी का निशाना बनाया जाता रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक गुज़िश्ता हालिया बरसों में 2000 से जायद हजारा शिया बिरादरी के लोग मारे जा चुके हैं, और इस मरतबा इस कत्लगारतगिरी की जिम्मेदारी इस्लामी स्टेट ने कबूल की है, जबकि इससे पहले ऐसे हलाकत खेज मामलात को सिपह सहाबा और लश्करी झंगवी जैसे दहशतगर्द गिरोह अपनी कामयाबी की कलगी की जीनत बनाकर पेश करते रहे हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत रही हो, उसने हजारा बिरादरी की इस हलाकत खेजी पर कभी संजीदगी से तवज्जो नहीं दी, और शायद इसकी वजह वही मजहबी व मसलकी मुनाफरत रही हो जिसने पाकिस्तानी मुआशरे को अपने हिसार में ले रखा है। लेकिन पाकिस्तान को मदीना वेलफेयर स्टेट बनाने और हर किस्म की मुनाफरत और करप्शन का खात्मा करने के नारे के साथ मसनदी इक़्तिदार संभालने वाले इमरान खान ने बलूचिस्तान के इस हौलनाक मोतसिबाना और दिलदोज वाक़े के सिलसिले में जो रवैया अपनाया वो तो आमिरियत की बदतरीन शक्ल दिखाई देती है।
हलाक होने वाले 11 कानकनों की लाशें एक हफ्ते तक उनके लावाकिन सड़क पर रखकर वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश करते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ताज़ियत के लिए आएं और मुजरिमीन को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा करें। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ 5 दिनों तक खामोशी इख्तियार कर रखी, बल्कि जब 5 दिनों बाद जुबान खोली तो निहायत आमराना अंदाज में ऐलान किया कि जब तक हलाक होने वालों की लाशें दफनाई नहीं जाती और रास्ते खोले नहीं जाते, उस वक्त तक न मैं उस मकाम पर आऊंगा और न ही किसी मुतालबे को सुनूंगा। ब्लैकमेल करने की मैं किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। दुनिया समझने से कासिर है कि महलूकीन की विरसा वज़ीर-ए-आज़म को किस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के दूसरे मकामात पर जब शिया हजरात ने इस मसले की कत्ल के खिलाफ एहतजाजात किए तो उनको भी निशाना बनाया गया। शायद दुनिया के किसी मुल्क के ये पहले वज़ीर-ए-आज़म होंगे जो अपने ही मुल्क के दहशतगर्दों के हाथों निहायत सफाकी से मारे जाने वाले अपने ही शहरियों के लावाकिन से निहायत गुस्से की हालत में ताज़ियत करने के लिए आने के लिए भी रखें और धमकी भी दी कि इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश न की जाए। हरचंद की तदफीन के बाद वो कोयटा गए, लेकिन इस बेहिसी ने उन्हें अवाम की नजरों से गिरा दिया। ये कोई उनके मुखालिफिन या दुश्मन लोग नहीं, बल्कि वो लोग हैं जिनमें किसी बूढ़े ने अपना बेटा, किसी औरत ने अपना भाई और बेपनाही की हालत में लरजती हुई किसी लड़की ने अपना बाप खोया है। अगर इनको इसी तरह मजलूम बनाए रखना ही हुकूमत और दीगर मजहबी व सियासी जमातों की मंशा है, तो फिर पाकिस्तानी माशरे को अपने मुस्तकबिल की तरफ से खौफजदा रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कब किसकी बारी आ जाए। उर्दू न्यूज मैगजीन में अभी आप सुन रहे थे आज की बात। एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो की ये उर्दू सर्विस है। उर्दू न्यूज मैगजीन में आइए अब सुनते हैं खबरनामा। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बारे में रियासतों के वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कोयला कानों में खुशउस्लूबी के साथ काम की खातिर एक ही मकाम पर मुख्तलिफ तरह की मंजूरी देने के निज़ाम का आगाज किया है। आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन का एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप कोरोना वायरस फैलने की वजूहात का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएगा और बांग्लादेश भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इस साल खास तवज्जो वाला मुल्क रहेगा। अब खबरें तफसील से। पूरे मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी मुहिम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ये मुहिम 16 जनवरी को शुरू होने वाली है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम माना जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रियासतों के वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। इस बातचीत में कोविड-19 की सूरत हाल और टीकाकारी अमल शुरू किए जाने के बारे में तबादले ख्याल किया जा रहा है। कौमी इंज़िबाती इदारे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन के हंगामी हालात में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम के टीके महफूज होने और मुदाफ़त पैदा करने की सलाहियत दोनों में खरे उतरे हैं। कोविड-19 टीकाकारी के अमल में हिफ़्ज़ान सेहत से वाबस्ता कारकुनों और पेश रहने वाले एहलकारों को तरजीह दी जाएगी, जिनकी तादाद तकरीबन 3 करोड़ है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के और 50 साल से कम उम्र के उन अफराद को टीका लगाया जाएगा जो दीगर बीमारियों से मुतासिर हैं। ऐसे लोगों की तादाद तकरीबन 27 करोड़ है। हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म ने मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की थी और साथ ही रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोविड-19 टीकाकारी अमल की तैयारियों का जायजा भी लिया था। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.43% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 19,000 से ज़्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह अब तक 1,92,000 से ज़्यादा अफराद रूब सेहत हो चुके हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क में फ़िलहाल ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासर अफराद की महज 2.13% है। सरेदस्त मुल्क में तकरीबन 2,22,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 16,311 नए मामला सामने आए हैं। इस तरह अब तक मुल्क में 1,04,66,000 से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। वज़ारत ने कहा है कि भारत में शरह अमवात
1.44% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम शरह में से एक है। पिछले 24 घंटे के दौरान 161 अमवात की इत्तला मिली है। इस तरह मुल्क में इस वायरस से मरने वालों की तादाद 1,51,160 हो गई है। इधर तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल ICMR के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 6,59,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। इस तरह अब तक कोविड-19 नमूनों के 18,17,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि साल 2024 तक भारत को 50 खरब डॉलर की मईशत बनाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नजरिए के तईं कोयले का शोबा सबसे बड़ा रोल अदा करने की सलाहियत रखता है। वो आज मुल्क में कोयला कानों के लिए एक ही मकाम पर मुख्तलिफ तरह की मंजूरी देने के निज़ाम का आगाज कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में मुल्क में कोयले की पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोयले का सेक्टर आत्मनिर्भर भारत के वज़ीर आज़म के नज़रिए को तक़वियत देने की भी सलाहियत रखता है। गुज़िश्ता 6 साल में NDA सरकार की जानिब से की गई मुख्तलिफ बड़ी इस्लाहात का जिक्र करते हुए जनाब अमित शाह ने जोर देकर कहा कि कोयले के सेक्टर में रुकावटों को दूर कर दिया गया है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 के फाइनल्स आज पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में मुनक़िद हुए। रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 84 फाते अफराद को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में लोकसभा के स्पीकर के साथ साथ खेल कूद और नौजवानों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू और दीगर मुमताज़ शख्सियात के सामने मौजूद होने का मौका मिला। जनाब किरण रिजिजू ने कहा कि नौजवान शिरका के लिए ये जिंदगी का एक नादिर मौका और एक यादगार लम्हा था कि जब उन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में अपने ख्यालात पेश किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021 की अलविदाई तकरीब से खिताब करेंगे। पहले 3 फाते अफराद को वज़ीर आज़म के सामने बोलने का मौका मिलेगा। वज़ीर आज़म इस मौके पर नौजवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि मुल्क में वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होने वाली तकरीबात की बदौलत नौजवानों को बहुत से दिलचस्प मुल्की और आलमी फोरम्स का हिस्सा बनने का एक अजीम मौका फराहम हुआ है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट प्रारंभ ऐसा ही एक मौका है। ये सरबराह मीटिंग इस महीने की 15 और 16 तारीख को मुनक़िद होगी। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इसका हिस्सा बने। इस सरबराह मीटिंग का मकसद सनत, माहिरीन तालीम, सरमायाकारी, बैंकिंग और मालियात से मुतालिक शोबों के सरकर्दा अफराद और नौजवान स्टार्टअप लीडरों को एक प्लेटफार्म पर लाना है। साथ ही मुल्क में स्टार्टअप इंडिया पहल के आगाज के 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस पहल की बदौलत भारत दुनिया भर में सबसे पुरकशिश स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम में शामिल हो गया है। ये खबरें ऑल इंडिया रेडियो से नश्र की जा रही हैं। पाकिस्तानी फौजियों ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद के मुख्तलिफ सेक्टरों में अगली चौकियों और गांवों पर बिला जवाज़ फायरिंग और मोर्टार से गोलाबारी करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। ये वाक़यात कल राजौरी, पुंछ और कठुआ ज़िले में पेश आए। अलबत्ता भारत की तरफ किसी तरह के नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। पाकिस्तानी फौज ने कल दोपहर 3 बजे के आसपास राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में कंट्रोल लाइन के नज़दीक छोटे हथियारों से फायरिंग और मोर्टार से गोलाबारी करके जंगबंदी की बिला जवाज़ खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ जिले में कंट्रोल लाइन के नज़दीक बालाकोट, दिगवार और किरनी सेक्टर में भी मोर्टार से गोलाबारी की। भारतीय फौजियों ने जवाबी कार्रवाई की और तीनों सेक्टरों में दोनों तरफ से गोलाबारी होने की इत्तला मिली है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने कल रात कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के नज़दीक गुरनाम सरहदी चौकी पर बिला जवाज़ फायरिंग भी की। जम्मू कश्मीर सरकार के सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल एक वफ़द ने गुजरात में कल साबरमती दरिया के दहाने पर तरक्याती प्रोजेक्ट का दौरा किया। ये वफ़द LG के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतेश्वर कुमार, जम्मू की ज़िला मजिस्ट्रेट और जम्मू स्टार्टअप सिटी प्रोजेक्ट की CEO सुषमा चौहान और दीगर शख्सियतों पर मुश्तमिल है। गुजरात सरकार के ओहदेदारों ने वफ़द को साबरमती रिवर फ्रंट के बारे में तफसीलात से आगाह किया। इस दौरे की अहमियत जम्मू में दरियाए तवी से मुतालिक मुस्तक़बिल के मंसूबे के पेश नज़र और ज़्यादा हो गई है।
आलमी सेहत तंजीम WHO के माहिरीन का एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप कोरोना वायरस आलमी वबा फैलने की वजूहात का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को चीन जाएगा। चीन के कौमी सेहत कमीशन के हवाले से सरकारी टेलीविजन ने बताया कि आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन की एक टीम जुमेरात को चीन का दौरा करेगी। टीम के अरकान खासतौर पर वुहान जाएंगे, जहां ये वायरस पिछले साल दिसंबर में सबसे पहले सामने आया था। भारतीय फौज ने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के उस सिपाही को वापस कर दिया है जिसे इस महीने की 8 तारीख को पकड़ा गया था। फौज के जराये के मुताबिक इस फौजी को आज सुबह चुशुल मोल्दो के मकाम पर चीन के हवाले किया गया। चीन के सिपाही को लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन के भारतीय इलाके से पकड़ा गया था। भारत के 51वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल इफ्फी ने अपने प्रोग्रामों का ऐलान किया है जो OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाएंगे। ये फेस्टिवल गोवा में 16 से 24 जनवरी तक मुनक़िद किया जाएगा। कोरोना आलमी वबा के पेश नज़र इफ्फी अब तक का अपना पहला हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल मुनक़िद कर रहा है। बांग्लादेश इस फेस्टिवल का तवज्जो का मुल्क है। इससे मुतालिक फेस्टिवल के खुसूसी हिस्से में सिनेमा की महारत और इसमें मुल्क के ताउन को तस्लीम किया गया है। 51वें इफ्फी के इस हिस्से में 4 फिल्में दिखाई जाएंगी। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। 16 जनवरी को कोविड-19 टीकाकरण की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी इस बारे में रियासतों के वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कोयला कानों में खुश उसलूबी के साथ काम की खातिर एक ही मकाम पर मुख्तलिफ तरह की मंजूरी देने के निज़ाम का आगाज किया है। आलमी सेहत तंजीम के माहिरीन का एक बैनुल-अक़वामी ग्रुप कोरोना वायरस फैलने की वजूहात का पता लगाने के लिए 14 जनवरी को चीन के दौरे पर जाएगा और बांग्लादेश भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल में इस साल खास तवज्जो वाला मुल्क रहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। इस खबरनामे के साथ ही आज का उर्दू न्यूज मैगजीन का ये शुमारा अब इख्तिताम पजीर होता है। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।